students, welcome back to my lectures of class 12 physics. We are studying our chapter moving charges and magnetism. In the previous few videos, we have seen the BIOT-SAVART law and some applications of BIOT-SAVART law. Now here in this video, we will see one more application of BIOT-SAVART law, that is the magnetic field on the axis of current carrying circular coil. मतलब हमारे पास यहाँ पर एक current carrying coil है and the axis which is passing through its center. At any point on its axis, we have to find the resultant magnetic field. Here in this case, we'll assume that the current in this coil will be along this direction. Means you can say that here we have this axis along this plane and the current is moving towards that side. Means that current is moving towards you. मतलब अगर इसको हम इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो करंट का डायरेक्शन दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Okay, so here this direction is very important. Now here we have to find the magnetic field on the axis of this current carrying coil. Now for that we know that BIOT-SAVART law is applicable for a small current carrying element. So here what we will do, we have to consider a small element dl. Okay, or we can say that current element IDL. Here we will consider that the radius of this ring is A and the distance from this center to the point where we are calculating the magnetic field, we will consider it to be x. Now here for this point we have to find the magnetic field at this point, so we have to consider a distance from this element to that point where we are calculating the magnetic field, and this distance, that is root of a square plus x square, because here we have this triangle में हमारे पास ये base है और ये क्या है, perpendicular. So this will be the hypotenuse, that is root of a square plus x square. Now here we will apply the BIOT-SAVART law. Now BIOT-SAVART law, this is dB is equals to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square. That is what the BIOT-SAVART law. Now here we have to find this angle theta. This theta is the angle between this dl and r. Means the length for which we are calculating the magnetic field and the distance r, that is this root of a square plus x square. Okay, now here this angle between this dl and r. अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास ये जो रिंग है और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. मतलब यहाँ पर हमारे पास ये जो रिंग है, इससे हम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. Here we have a ring and we will draw a tangent at this point, and the axis which is passing through this point to the point on the axis where we are calculating the magnetic field. मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो एंगल कितना हो गया, that will be 90 degree. Now here you can understand in this way कि आप यहाँ पर एक रिंग है आपके पास and here the length element that will be along the tangent, और यहाँ से इस पॉइंट से किसी भी एक्सिस पर जब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो इस लाइन और इस टेंजेंट के अलोंग यहाँ पर ये जो एंगल रहेगा दैट विल बी 90 डिग्री. मतलब यहाँ पर थीटा दैट इज बिटवीन DL एंड R दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पर साइन 90 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1. मतलब यहाँ पर दिस DB विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट by 4 pi IDL by R square. Now here we have used the generalized formula of this BIOT-SAVART law, but here we have to use this value of R. इस केस में यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, this R is the distance from the point to the point where we are calculating the magnetic field. तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट से यहाँ तक हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो हियर आई कैन राइट दिस R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. मतलब यहाँ पर ये जो dB है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यहाँ पर क्या है, दिस r इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, दिस रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल, इट विल बी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. Now here we have calculated the magnitude of magnetic field at this point, but what will be the direction of that magnetic field? अब यहाँ पर क्या होता है कि हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, और वो राइट हैंड थंब रूल जब हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म इसका यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं द एंगल बिटवीन DL एंड DR. नाउ हियर वी हैव टू यूज द राइट हैंड थंब रूल इन अ डिफरेंट वे. ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा. इसके अंदर क्या था, यू हैव टू होल्ड द कंडक्टर इन योर हैंड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द डायरेक्शन इन विच यू हैव कर्ल्ड योर फिंगर्स दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास ये एक रिंग है, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इट विल बी टुवर्ड्स योर डायरेक्शन. तो यहाँ पर क्या होगा, इन दिस वे आई विल होल्ड दी कंडक्टर. तो ये डायरेक्शन क्या है, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ करंट.
अब यहाँ पर क्या है, हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना होता तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये जो फिंगर टिप्स है दे आर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस साइड तो क्या होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, बट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग ऑन दिस साइड। मतलब यहां पर क्या होगा, मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स योर साइड एंड एट दिस साइड द टिप ऑफ द फिंगर्स दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब यहां पर जो भी डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का दैट विल बी इन द परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि यहां पर डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो डीबी है ये यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी डीबी, दैट इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। So understood, here we will hold the conductor in such a way that this thumb represents the direction of current, then the tips of the finger that will represent the direction of magnetic field at that point where you are calculating the magnetic field. Here अगर आप इस साइड में निकालते हो तो perpendicular upwards, अगर यही magnetic field का डायरेक्शन आप इस साइड में निकालोगे then it will be perpendicular downward. Now here in this derivation I will consider one more current element which is exactly on the opposite side of this DL. यहाँ पर भी जो करंट एलिमेंट होगा ये कितना हो जाएगा, आईडीएल। हमें क्या डिस्टेंस कंसीडर करनी है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कंसीडर करनी है एग्जैक्टली सेम। अगर यहाँ पर ये एक्स है, ये रेडियस कितना है हमारे पास ए, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट वी विल कंसीडर दैट टू बी डी बी डैश। अब यहां पर भी क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है। व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, दिस मैग्नीट्यूड आई कैन राइट दिस डी बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Here the magnitude of this dB and dB dash both are exactly same, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब पैरामीटर्स वो भी क्या है, सेम है। और जो एंगल है बिटवीन दिस DL एंड R that will be also 90 डिग्री फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। Again we have to use that right hand thumb rule. So according to that right hand thumb rule, now here in this case the current is moving in the downward this direction, मतलब यहाँ पर करंट डायरेक्शन क्या है, towards the board. Now here I will hold the conductor in such a way that this thumb represents direction of current, और यहाँ पर direction of current क्या है, on this side यहाँ पर नीचे की तरफ towards the board, means here the finger tips on this side they are pointing in the downward direction। मतलब for this element which is in the downward direction यहाँ पर magnetic field क्या हो जाएगा, perpendicular downward direction में, and that is perpendicular to both that DL and this distance which we are considering। तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से कुछ consider करते हैं, this is dB dash, that's a vector quantity, okay, and this is making an angle of 90 degree with this distance। So here you can see this dB is perpendicular in the upward direction and this dB is perpendicular in the downward direction। यहाँ पर ये डायरेक्शन exactly different है जो कि हमने देखा था in case of electric field intensity on the axis of uniformly charged ring। ठीक है, so here these directions they are perpendicular upwards and this is perpendicular downwards। Okay, now here what we will do, we have to resolve this dB and dB dash। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पर जो dB है इसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ हियर वी हैव टू कंसीडर एंगल थीटा एंड बिकॉज ऑफ दैट एंगल थीटा ओनली वी कैन रिजॉल्व दी वेक्टर्स। सो हियर आई विल कंसीडर दिस एंगल टू बी एंगल फाई। अब यहाँ पर अगर ये एंगल फाई है तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होगा, दिस विल बी एंगल फाई। क्यों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है दिस बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यहाँ पर भी ये इस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब जब हम यहाँ पर इस dB को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसके साथ साथ ये भी क्या नीचे की तरफ मूव करेगा। मतलब जितना एंगल यहाँ पर dB जब इसके ऊपर आएगा, जितना ये एंगल ट्रेस करेगा उतना ही यहाँ पर ये भी एंगल ट्रेस होगा। मीन्स दिस एंगल फाई एंड दिस एंगल फाई बोथ आर एग्जैक्टली same। So here based on this angle phi I can resolve this dB। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, dB sin phi and here it will be dB cos phi। जहां पर अपने पास एंगल होता है वो cos कंपोनेंट होता है और जहां पर एंगल नहीं है वहां पर sin कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, नाउ हियर वी हैव टू रिजॉल्व अगेन दिस dB डैश। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे इन दीज टू डायरेक्शंस। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी एंगल फाई होगा, यहाँ पर भी ये एंगल फाई होगा, बिकॉज ऑल द पैरामीटर्स इन बोथ द ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, dB डैश cos phi। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है इसका, dB डैश, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, dB डैश cos phi, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, dB डैश sin phi। अब यहाँ पर देखो ये जो dB डैश है और dB है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एग्जैक्टली सेम है।
Okay, so here we have calculated the magnetic field at this point due to the two exactly opposite elements. ऐसे हमको यहाँ पर पूरे रिंग के लिए निकालना है. तो यहाँ पर क्या होगा, for each and every element the magnitude will be same but the direction will be exactly opposite. और यहाँ पर जब भी हमको रिजल्टेंट डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, इन दैट केस यू कैन सी दिस dB cos थीटा और dB डैश cos थीटा. यहाँ पर dB डैश dB दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम है, एंगल फाई भी सेम है, मतलब कॉस कंपोनेंट हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर जो एलिमेंट बचेगा जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी साइन कंपोनेंट. आपने यहाँ पर ये जो रिंग है इसके अभी हमने ये एलिमेंट और ये एलिमेंट लिया, उसकी वजह से रिजल्टेंट क्या आया, अलोंग दी एक्सिस. ऐसे ही आप इसी रिंग के लिए एक एलिमेंट यहां पर ले लो, एक एलिमेंट यहां पर ले लो, उसके लिए भी क्या आएगा, इट विल बी अलोंग द सेम एक्स एक्सिस. मींस यहां पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस रिंग दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस dB sin phi. मतलब यहां पर जो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi, या फिर आप लिख सकते हो समेशन ऑफ ऑल दी साइन कंपोनेंट्स, और वो जो समेशन है साइन कंपोनेंट्स का वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी सेम एज दी इंटीग्रेशन. So here we have seen that the total magnetic field which can be found by integrating this dB of sin phi. Okay, now here this sin phi, from this triangle we can find the value of sin phi, that is perpendicular upon hypotenuse. तो यहाँ पर perpendicular क्या है, a upon hypotenuse, that is root of a square plus x square. And what is the value of dB which we have found? This dB is equals to mu naught by 4 pi I dl by a square plus x square. Now here we'll put both of these values here. So I can write here this b is equals to integration of mu naught by 4 pi I dl by a square plus x square into a by a square plus x square raised to the power 1 by 2. So here this b is equals to mu naught by 4 pi I a by a square plus x square raised to the power 3 by 2, 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2 into integration of dl. इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब यहाँ पर जो पूरी रिंग है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे फॉर दी लेंथ, और इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, दैट विल बी द सर्कमफेरेंस, दैट इज इक्वल्स टू 2 pi r. एंड हियर आई कैन राइट दिस b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट by 4 pi I a by a square plus x square raised to the power 3 by 2 into 2 pi a. So here I can write this magnetic field B is equals to mu naught by 4 pi 2 pi I a square divided by a square plus x square raised to the power 3 by 2. So this is the value of magnetic field on the axis of a current carrying ring. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस बन जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस है. द फर्स्ट केस विच वी विल कंसीडर दैट दिस x इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गई, 0. मतलब जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट कहां पर है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल. सो एट सेंटर ऑफ कॉइल अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तब यहाँ पर क्या होगा, दिस b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 pi I a square by a square raised to the power 3 by 2. तो यहाँ पर a square and 3 by 2, यहाँ पर 1 by 2 to cancel हो जाएगा. Here we'll have a cube. अब यहाँ पर a square by a cube, I can write this b is equals to mu naught by 4 pi 2 pi I by a. This is what the formula at the center of a coil, and this we have derived in the previous application of BIOT-SAVART law, that is b is equals to mu naught by 4 pi 2 pi I by a at the center of a current carrying coil. और यहीं पर अगर इस coil के साथ n number of turns associated है, then this formula will become 2 pi n I by a, that is the magnetic field at the सेंटर ऑफ अ कॉइल. अब यहीं पर सेकंड केस हम कंसीडर करेंगे कि अगर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, मींस दिस x इज ग्रेटर देन a. इस केस में हम यहाँ पर जो a की वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर कर सकते हैं. और वो भी हम a की वैल्यू 0 कब कंसीडर करेंगे, व्हेन वी आर कंपेयरिंग दिस x एंड a. मतलब यहाँ पर जो a है इसको हम डायरेक्टली 0 नहीं पुट कर सकते, हम इस केस में यहाँ पर a की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज वी आर कंपेयरिंग हियर x एंड a. तो यहाँ पर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, a की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू x. So here I can write this b is equals to mu naught by 4 pi, here 2 pi I a square by, here we have x square raised to the power 3 by 2. a तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, it will be x
cube. This is the formula when this x is very large as compared to the radius of that coil. Okay, now here in this formula, this pi a square, that is a is the radius of this coil, तो यहाँ पर pi a square क्या हो जाएगा, इसका एरिया, और उसको हम लिख लेते हैं B is equals to mu naught by 4 pi 2 I a by x cube. यहाँ पर pi a square क्या हो जाएगा, that will be एरिया, और यहाँ पर 2I as it is. अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, अगर हमें n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लिखना है, देन व्हाट वी विल राइट, वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर विथ n, दैट इज फॉर दी n नंबर ऑफ टर्न्स. अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में हम एक और टर्म पढ़ेंगे, दैट इज दी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, वैसे हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है. एंड दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, and that is equals to NIA, where n is the number of turns, I is the current, and A is the area. This we'll study in the next chapter. तो यहाँ पर हमारे पास n, I और A तीनों हैं. मतलब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम डायपोल मोमेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं. That is mu naught by 4 pi 2m by x cube. Here this dipole moment is equals to NIA. So these are the two special cases based on this formula, and this is the complete derivation of the application of BIOT-SAVART law, that is the magnetic field on the axis of current carrying circular coil.